Hello students. So today we are continuing our previous lecture on the problems related to greatest common divisor and division algorithm. Okay. So let us start our first problem for today's lecture. Prove that the expression 3n factorial divided by 3 factorial whole to the power n is an integer for all n greater than equal to 0. We have to show that 3n factorial divided by 3 factorial whole to the power n is always an integer. So we will prove this result with the help of principle of mathematical induction, PMI. So what we do in PMI is that first of all we prove that this result is true for n equal to 1. So here as it is given that n is greater than equal to 0, so here we will prove that the given statement is true for n equal to 0, for n equal to 1, and then we will assume that the given statement is true for n equal to k, where k is a natural number, and then we will prove that the result is true for n equal to k plus 1 also. This is what we do in PMI. Many of us already know what is PMI, and some of you may be new to this concept of PMI. So जिसको पता है well and good, और जिनको नहीं पता है please go through it. And yes, some videos will be definitely uploaded on PMI. From there also you can learn. Okay. So first we will prove that the result is true for n equal to 0 and n equal to 1. As it is given that n is greater than equal to 0, so we are proving that the result is true for n equal to 0 also. Otherwise सिर्फ n equal to 1 के लिए prove करने से भी होता है. And then we assume that the result is true for n equal to k, where k is some natural number, and then we prove that the result is true for n equal to k plus 1 also. And this completes the proof by the method of principle of mathematical induction. So let Pn be the given statement, that Pn is 3n factorial divided by 3 factorial whole to the power n is an integer. This is the given statement. So we will prove that this statement is true for n equal to 0. So when we put n equal to 0, so what happens? 3 into 0 factorial divided by 3 factorial whole to the power 0. 3 into 0 is 0, so 0 factorial, and anything to the power 0 is 1, so it is 1. 0 factorial is 1, so 1 by 1, which is an integer. Okay? So the Pn is true for n equal to 0. Now we will prove that the statement is true for n equal to 1 also. So P of 1 is what? 3 into 1 factorial divided by 3 factorial whole to the power 1. So it is 3 into 1 is 3, 3 factorial is 6, and again 3 factorial is 6, so 6 by 6 1, which is an integer. So Pn is true for n equal to 1 also. Now we assume that let Pn be true for n equal to k, where k is some natural number. ठीक है? That is, अगर ये statement true है, that means for n equal to k, that means 3k factorial divided by 3 factorial whole to the power k is an integer. It is true. We are assuming that Pn is true for n equal to k, so we are writing 3k factorial divided by 3 factorial whole to the power k is an integer. Okay, now we shall now prove that Pn is true for n equal to k plus 1 also. Okay, so in place of n, what we are writing? K plus 1, and we will prove that when we put n equal to k plus 1, it is also an integer. So let us put the 3 into k plus 1 whole factorial divided by 3 factorial whole to the power k plus 1. ठीक है? So इसको सिंप्लीफाई करो, 3k plus 3 whole factorial, और नीचे क्या वाला 3 factorial whole to the power k into 3 factorial whole to the power 1. ठीक है? एक्सपोनेंट का फॉर्मूला. Now 3k plus 3 factorial is what? 3k plus 3, then 3k plus 2, then 3k plus 1, and then 3k factorial. और नीचे 3 factorial is 6 हो गया, और 3 factorial whole to the power k को हमने थोड़ा साइड में लिखा. नाउ इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं. यहाँ से 3 कॉमन ले लो, कॉमन लेके 6 को काट दो, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा. तो यहाँ पे रह जाएगा k प्लस 1 और 3k प्लस 2, 3k प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू, इसको हमने अलग से लिखा, इस क्वांटिटी को हमने अलग से लिखा 3k फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल टू द पावर k, एंड वी हैव assumed that it is an integer. So in place of this we have written L, where L is an integer. We already assumed that it is an integer. It is true. Pn is true for n equal to k, that is 3k factorial divided by 3 factorial whole to the power k is an integer. So we are assuming it is a L, where L is an integer. Now we have to prove that this quantity is also an integer. Then only integer into integer will give us an integer. So let us see whether it is an integer or not. If k is odd, k is an integer, na? K is an integer. So if k is odd, then k plus 1 is even.
and so k plus 1 by 2 is an integer because even by 2 is always an integer. If k is even, ठीक है, पहले हमने लिया था k is odd, अभी हमने क्या लिया, k is even. अगर k even है तो 3k भी even है. Of course, if k is even then 3k is even. So 3k plus 1 will be odd and 3k plus 2 will be even. So अगर 3k plus 2 अगर even है तो 3k plus 2 divided by 2 will be an integer. So हमने लिखा so 3k plus 2 divided by 2 is an integer and hence the entire expression is always an integer. Either k even हो चाहे odd हो, this expression will always be an integer. ठीक है. So the statement is true for n equal to k plus 1 also. ठीक है. The statement is true for n equal to k plus 1 also, and therefore Pn is true for n equal to k plus 1. Thus, by principle of mathematical induction, Pn is true for all. Pn is true for all n greater than equal to 0. ठीक है. तो हमने दिखा दिया कि Pn is true for n equal to k plus 1, and thus by the method of principle of mathematical induction, Pn is true for all n greater than equal to 0. Hence proved. So next problem is, the product of any 3 consecutive integer is divisible by 6, the product of any 4 consecutive integer is divisible by 24, and the product of any 5 consecutive integer is divisible by 120. कोई भी 3 consecutive integer ले लो, इनका product करो, it will be divisible by 6. कोई भी 4 consecutive integer ले लो, इनका divide करो, इनका product करो, it will be divisible by 24. and कोई भी 5 consecutive integer ले लो और इनका product करो, it will be divisible by 120. ठीक है. इंटीजर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, डजंट मैटर, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, एक के बाद एक. ठीक है. तो कोई भी 3, पहले हम प्रूफ करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6. फर्स्ट वी विल प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 6. 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेंगे, इनका प्रोडक्ट करेंगे और ये 6 से डिवाइड जाएगा, ये हम प्रूफ करेंगे. ठीक है. तो पहले हम बता देते हैं कि प्रूफ कैसे करेंगे. तो फर्स्ट वी will prove that product of any 3 consecutive integers is divisible by 2, and product of any 3 consecutive integer will be divisible by 3, and as the GCD of 2 and 3 is 1, so product of any 3 consecutive integer will be divisible by 2 into 3, and that is product of any 3 consecutive integer is divisible by 6. So we will use the previous formulas that we have already discussed, that if a divides c and b divides c and GCD of AB equal to 1, then AB divides C. ठीक है. ये हमने पहले पढ़ा है कि नहीं है, कि if A divides C and B divides C and GCD of AB equal to 1. GCD of AB equal to 1, then AB divides C. If A divides C and B divides C and GCD of AB equal to 1, then AB divides C. We will prove this result to prove this problem. ठीक है. So for any integer A, we may consider 3 consecutive integer as A plus 1 and A plus 2. ठीक है. If A is even, then definitely 2 divides A. ठीक है कि नहीं. अगर A even है तो 2 A को जरूर डिवाइड करेगा, and so 2 divides A into A plus 1 into A plus 2. If A is odd, then A plus 1 is even, and so 2 divides A plus 1, and hence 2 divides A into A plus 1 into A plus 2. ठीक है. तो 2 divides A into A plus 1 into A plus 2 is always true. मतलब 2 divides the product of 3 consecutive integers. Now we will move toward 3. Let A equal to 3q plus R. ठीक है. Where R is greater than equal to 0 and less than 3. Let A equal to 3q plus R, where R greater than equal to 0 and less than 3, where q belongs to Z. Then if R equal to 0, तो A equal to 3q होगा, और अगर A equal to 3q होता है तो 3 divides A, and hence 3 divides A into A plus 1 into A plus 2. अगर R equal to 1 होता है तो A क्या होगा, 3q plus 1 होगा, तो A plus 2 क्या होता है, 3q plus 1 plus 2, that is 3q plus 3, that is 3 into q plus 1, and so 3 divides A plus 2, and hence 3 divides A into A plus 1 into A plus 2. If R equal to 2, then A equal to 3q plus 2, and A plus 1 becomes 3q plus 3, that is 3 into q plus 1, and hence 3 divides A plus 1, so 3 divides A into A plus 1 into A plus 2. So in all the cases we see that 3 divides A into A plus 1 into A plus 2, and previously we have seen that
2 divides a into a plus 1 into a plus 2. So what we are getting, 2 divides a into a plus 1 into a plus 2, and 3 divides a into a plus 1 into a plus 2, and as the GCD of 2 and 3 is 1, so 2 into 3, that is 6, divides a into a plus 1 into a plus 2. So hence the result. And similarly prove the rest. I have not done the other parts. What are the other parts? Other parts are the product of 4 consecutive integers is divisible by 24 and product of 5 consecutive integers is divisible by 120. So these are your homework. ठीक है, prove the rest. This is your homework. So अगर तुमको दिखाना है कि 4 consecutive integer का product 24 से divide जाता है. So this was the question, that product of 4 consecutive integer is divisible by 24. तो आप ले लो 4 consecutive integer, आपको दिखाना पड़ेगा कि product of 4 consecutive integer is divisible by 2, the product of 4 consecutive integer is divisible by 3, the product of 4 consecutive integer is divisible by 4. ठीक है, I am repeating, you have to show that product of 4 consecutive integer is divisible by 2, product of 4 consecutive integer is divisible by 3, and product of 4 consecutive integer is divisible by 4. And as the GCD of 2, 3 and 4 is 1, and so the product of 4 consecutive integer is divisible by 2 into 3 into 4, that is by 24. ठीक है, और जब आपको दिखाना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ 5 consecutive integer is divisible by 120, in that case you may consider the 5 consecutive integers are divisible by 2, 3, 4 and 5. ठीक है, and since the GCD of 2, 3, 4 and 5 is 1, so the product of 5 consecutive integer is divisible by 2 into 3 into 4 into 5, which gives us 120. ठीक है, so these are your homework. ये करना, और हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, in that group you send the solution. Now next question, establish each of the following assertion given below. If a is an arbitrary integer, then 6 divides a into a square plus 11. A कोई भी integer हो, a is an arbitrary integer, then 6 will definitely divides a into a square plus 11. So let a equal to 6 cube plus r. We are using division algorithm repeatedly. हम बार बार division algorithm को use कर रहे हैं. So we are here using the division algorithm on a and 6. So a equal to 6 cube plus r. So r is greater than equal to 0 and less than 6. ठीक है. If r equal to 0, then a equal to 6 cube and hence 6 divides a and hence 6 divides a into a square plus 11. अगर r equal to 1 होता है तो a equal to 6 cube plus 1 होगा. ठीक है, तो a square plus 11 क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करो, you are getting a square plus 11 is a multiple of 6 and 6 divides, and so 6 divides a square plus 11 and hence 6 divides a into a square plus 11. जब r equal to 2 होता है तो a equal to 6 cube plus 2 होगा, तो a square plus 11 क्या होता है, इसको निकालो, is a multiple of 3 and फिर a into a square plus 11, a into a square plus 11 निकालो, so it becomes multiple of 6 and hence 6 divides a into a square plus 11. तो जब मैंने r equal to 0, 1 और 2 के लिए प्रूफ किया, आप 3, 4 और 5 के लिए भी प्रूफ करो. In all the cases you will see that 6 divides a into a square plus 11 and hence we can conclude that for any integer a, 6 always divides a into a square plus 11. Please complete the proof. मैंने 3 के लिए किया, आप और 3 के लिए करो. ठीक है. Next, if a is an odd integer, then 24 divides a into a square minus 1. So we know square of an odd integer is of the form 8m plus 1. बहुत बार यूज कर चुके हैं हम इस रिजल्ट को. Square of an odd integer is of the form 8m plus 1 where m is an integer. So a square minus 1 क्या इस फॉर्म में होगा, a square is of the form 8m plus 1 minus 1, so 8m. a square minus 1 is the form 8m, that means 8 divides a square minus 1. ठीक है, a square minus 1 is a multiple of 8, so 8 divides a square minus 1 and hence 8 divides a into a square minus 1. ठीक है, हमको दिखाना क्या है, 24 divides a into a square minus 1. तो अगर हम दिखाते हैं कि 8 divides a into a square minus 1 and 3 divides a into a square minus 1, and since GCD of 8 and 3 equal to 1, so 8 into 3 will divide a into a square minus 1 and hence 24 will divide a into a square minus 1. This is the logic behind this proof. ठीक है, तो हमने 8 का तो दिखा दिया, अभी हम 3 का दिखाएंगे. तो देखो, a into a square minus 1 is nothing but a into a plus 1 into a minus 1. So इसको हम थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, a minus 1 into a plus 1. So this is the product of 3 consecutive integer. This is a product of 3 consecutive integer, and we know that product of any 3 consecutive integer is divisible by 6 and hence it is divisible by 3 also, because 3 divides 6 and 6 divides product of 3 consecutive integers, and so 3 will also divide product of 3 consecutive integer, and so 3 divides a minus 1 into a plus 1, and therefore 3 divides a into a square minus 1,
here we have got 8 divides a into a square minus 1, here we are getting 3 divides a into a square minus 1, and GCD of 3 and 8 equal to 1, so 24 divides a into a square minus 1. ठीक है, so here is the result. Excuse me. तो अभी देखो, next what we need to prove, if a and b are odd integers then 8 divides a square minus b square. ठीक है, so we know that square of an odd integer is of the form 8m plus 1. ठीक है, और a और b दोनों ही odd है, तो दोनों ही 8m plus 1 फॉर्म में होगा where m is an integer. So let us consider a square equal to 8k plus 1 where k is an integer and b square equal to 8p plus 1 where p is an integer. ठीक है, तो a square minus b square किस फॉर्म में होगा, 8k plus 1 minus 8p minus 1, so plus 1 minus 1 cancels, so it is of the form 8 into k minus p, so a square minus b square is a multiple of 8, and so 8 divides a square minus b square. So hence we are done with the proof. Next question is, if a is an integer not divisible by 2 or 3 then 24 divides a square plus 23. तो बोला कि a एक ऐसा इंटीजर है जो कि ना 2 से डिवाइड जाता है ना 3 से डिवाइड जाता है, तो 24 डिवाइड्स a square plus 23 होगा. वेरी इंटरेस्टिंग प्रूफ. इफ a इज एन इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 2 और 3, a को 2 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, देन 24 विल डिवाइड a square plus 23. सो वी विल यूज डिविजन एल्गोरिथम फॉर a and 12. So a equal to 12q plus r where r is greater than equal to 0 and less than 12. Since a is not divisible by 2 or 3, तो r equal to 1, 5, 7 और 11 ही होगा, क्योंकि r अगर 0 होता है तो a equal to 12q होगा, तो वो a 2 से डिवाइड चला जाएगा, 3 से भी डिवाइड चला जाएगा. r अगर 2 होता है तो क्या होगा, 12q plus 2 होगा, तो 2 कॉमन जाएगा, तो a 2 विल डिवाइड a, जो कि नहीं है. a is not divisible by 2 और 3. ठीक है, r अगर 3 होता है तो then 3 will divide a बिकॉज 3 कॉमन जाएगा. r अगर 4 होता है तो यहाँ से 2 कॉमन जाएगा, तो 2 विल डिवाइड से, वो भी हमको नहीं चाहिए. r अगर 6 होता है तो भी 2 भी कॉमन जाएगा, 3 भी कॉमन जाएगा, सो a विल बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, जो कि हमको नहीं चाहिए. r अगर 8 होता है तो 2 कॉमन जाएगा, देन 2 विल डिवाइड है, जो कि हमको नहीं चाहिए. 2 से भी नहीं जाना है, 3 से भी नहीं जाना है. r अगर 10 होता है, 9 होता है तो 3 कॉमन जाएगा, तो 3 विल डिवाइड है, जो कि हमको नहीं चाहिए. r अगर 10 होता है तो 2 कॉमन जाएगा, देन 2 विल डिवाइड है, जो कि हमको नहीं चाहिए. सो द पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 1, 5, 7 11. ठीक है, ताकि a इज नॉट डिविजिबल बाई 2 और 3 हो. ठीक है, सो व्हेन r इक्वल टू 1, तो a स्क्वायर प्लस 23 क्या होता है, तो a विल बी 12q प्लस 1. सो पुट द वैल्यू एंड सिंप्लीफाई, यू विल गेट 24 कॉमन आ जाएगा. सो a स्क्वायर प्लस 23 इज ए मल्टीपल ऑफ 24 एंड हैंस 24 विल डिवाइड a स्क्वायर प्लस 23. ठीक है, तो सिमिलरली प्रोसीड फॉर अदर्स. अभी आप r इक्वल टू 5 लो तो a इक्वल टू 12q प्लस 5 होगा, एंड प्रूव दैट 24 डिवाइड a स्क्वायर प्लस 23. r इक्वल टू 7 लो, r इक्वल टू 11 लो, करके दिखाओ. ठीक है, सॉल्व इट एंड शो मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, दिस इज एन होमवर्क फॉर यू गाइस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ a इज एन आर्बिट्ररी इंटीजर देन शो दैट 360 डिवाइड्स a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस 4. a अगर एक आर्बिट्ररी इंटीजर होता है तो 360 जो है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, सॉरी 360 विल डिवाइड्स a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस 4. दैट इज 360 विल डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 एंड a स्क्वायर माइनस 4. a इज एनी आर्बिट्ररी इंटीजर. तो इसको हम पहले अरेंज करते हैं अच्छे से. a इंटू a स्क्वायर माइनस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस 4. तो a को हम लिख सकते हैं a इंटू a स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, और a स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं a माइनस 2 इंटू a प्लस 2. इसको हम उसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे. वी आर राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, a माइनस 2 इंटू a माइनस 1 इंटू a प्लस 1 इंटू a प्लस 2, और एक जो एक्स्ट्रा a है उसको हमने साइड में लिख दिया. ठीक है, दैट विल बी यूजफुल लेटर, दैट a, लास्ट वन a. नाउ व्हाट इज 360? 360 इज a मल्टीपल ऑफ 5, 8 and 9. 360 इक्वल टू 5 इंटू 8 इंटू 9. 360 कैन बी फैक्टराइज्ड एज 5 इंटू 8 इंटू 9. और GCD ऑफ 5, 8, 9 क्या है? 1. दिस सिंपली ब्रैकेट मीन GCD. मैं यहाँ पे GCD लिखने का जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट हेयर GCD ऑल द टाइम. सो अगर सिंपल आप ब्रैकेट में लिखते हो 5, 8, 9, दैट मीन GCD ऑफ 5, 8, 9 इज दैट सिंबलाइज द GCD ऑफ 5, 8, 9, एंड वी नो द GCD ऑफ 5, 8, 9 इज 1. ठीक है, तो अगर हम दिखाते हैं कि 5 डिवाइड्स दिस क्वांटिटी, 8 डिवाइड्स दिस क्वांटिटी, 9 ऑल्सो डिवाइड्स दिस क्वांटिटी, and as the GCD of 5, 8 and 9 is 1, so their product will also divide this quantity. ठीक है, understood? If we can show that 5 divides a square into a square minus 1 into a square minus 4, 8 divides a square into a square minus 1 into a square minus 4, 9 divides a square into a square minus 1 into a square minus 4, then 360 will divide a square into a square minus 1 into a square minus 4, because GCD of 5, 8 and 9 is 1. ठीक है,
So we are here using that if A divides C and B divides C and GCD of AB equal to 1, then AB will divide C. We are using that result. So we know product of 5 consecutive integer is divisible by 120. ठीक है, ये हमको पता है. द प्रोडक्ट ऑफ 5 consecutive integer is divisible by 120. पहले हमने प्रूफ करने के लिए दिया है आपको. एंड ऑल्सो बाई 24, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive integer ही 24 से डिवाइड जाता है. तो 5 ले लो तो जाएगा ही जाएगा ना, ऑब्वियस बात है. प्रोडक्ट ऑफ 4 consecutive integer डिविजिबल बाई 24. तो अगर आप और एक इंटीजर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हार्म होता है? नो हार्म इज देयर. इट विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाई 24. ठीक है, तो एंड देयरफॉर व्हाट वी आर कंक्लूडिंग, प्रोडक्ट ऑफ 5 consecutive integer is divisible by 5 and 8 also. Why? Because see, 5 divides 120 and 120 divides product of 5 consecutive integers. So 5 will also divide product of 5 consecutive integers. Again, 8 divides 24 and 24 divides product of 5 consecutive integers. And so 8 will also divide product of 5 consecutive integers. Here what we are using, that if A divides B and B divides C, then A also divide C. ठीक है, we are using that result here. Okay, if A divides B and B divides C, then A will also divide C. We are using that result. ठीक है, now तो हमको क्या मिल गया कि प्रोडक्ट ऑफ 5 consecutive integer is divisible by 5 and 8. तो अभी 9 का बारी है. यहाँ पे तो प्रोडक्ट ऑफ 6 इंटीजर्स है, लेकिन 5 जो है कॉन्जिक्यूटिव है. ठीक है, it is a product of 6 integers, but among these 6 integers 5 of them are what? Consecutive. A minus 2, A minus 1, A plus 1 and A plus 2. तो अगर 5 divides A minus 2 into A minus 1 into A plus 1 into A plus 2, तो एक प्रोडक्ट अगर A हो गया तो नो हार्म. 5 will definitely divide the whole product. And if 8 divides A minus 2 into A minus 1 into A plus 1 into A plus 2, तो एक प्रोडक्ट एक इंटीजर आप एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लो, नो हार्म. 8 will also divide the whole quantity. ठीक है, the main thing is 5 and 8 divide product of 5 consecutive integer. Now अभी 9 का बारी है. See, we know that product of 3 consecutive integer is divisible by 6. ठीक है, what we know, we have done this question in our earlier problem, that product of 3 consecutive integers is divisible by 6. ये हमने पहले किया है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integer is divisible by 6. तो सो इट इज divisible by 3 ऑल्सो. होगा कि नहीं, कि प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integer अगर 6 से डिवाइड जाता है तो प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integer 3 से भी जाएगा, बिकॉज 3 डिवाइड 6 and 6 divide product of 3 consecutive integer, and hence 3 will also divide product of 3 consecutive integer. ठीक है, तो what we are getting here कि 3 divides product of 3 consecutive integer. ठीक है, 3 divide product of 3 consecutive integer. 3 divides product of 3 consecutive integer. Now A minus 2, A minus 1 and A, these are the product of 3 consecutive integer. It will be definitely divisible by 3. ठीक है, then again A into A plus 1 into A plus 2 is also product of 3 consecutive integer. It will be also divisible by 3. देखा, ये दूसरा वाला A जो है अभी यूज आया, ये जो एक्स्ट्रा A जो था यहाँ पे अभी वो यूज आया. A minus 2 A और A plus 1 को लिया और हमने फिर से A plus 1 और A plus 2 को लिया. ठीक है, तो अब क्या मिला अभी, A minus 2 into A into A minus 2 into A minus 1 into A is divisible by 3 because product of 3 consecutive integer divisible by 3, and A minus 2 A minus 1 और A 3 consecutive integers है, और A into A plus 1 into A plus 2 are also product of 3 consecutive integer. It will be divisible by 3, so their product will be divisible by 9. ठीक है, तो therefore A minus 2 into A minus 1 into A और A plus 1 into A plus 2 into A, their product is definitely divisible by 9. ठीक है, तो क्या मिला हमको कि ये जो होल क्वांटिटी है ये 9 से डिवाइड जाता है, और पहले हमको क्या मिला कि ये जो होल क्वांटिटी है वो 5 और 8 से भी डिवाइड जाता है. ठीक है, तो हमको क्या मिला, सिंस GCD of 5, 8, 9 equal to 1, so this whole quantity will be divisible by 5 into 8 into 9, and so 360 divides this whole quantity, and this whole quantity is nothing but this quantity. ठीक है, so hence the proof. Next question, confirm the following properties of greatest common divisor. कि if GCD of AB अगर 1 होता है and GCD of AC भी 1 होता है तो GCD of A, BC भी 1 होगा. दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव कि अगर GCD of AB 1 होता है एंड GCD of AC भी 1 है, देन GCD of A, BC विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1. ठीक है, सो लेट अस प्रूव इट. सो GCD of AB इक्वल टू 1, इट मीन्स व्हाट, AX plus BY equal to 1 for some integer X and Y. We have discussed this theorem in our earlier lecture.
कि GCD ऑफ AB कैन बी एक्सप्रेस्ड एज AX प्लस BY वेयर X एंड Y सम इंटीजर. सो GCD ऑफ AB अगर 1 है तो AX प्लस BY इक्वल टू 1 है फॉर सम इंटीजर X एंड Y. अगेन सेम प्रॉपर्टी, अगर GCD ऑफ AC इक्वल टू 1 है तो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स U and B सच दैट AU प्लस CB इक्वल टू 1. नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 1 and 2. What we are getting, AX प्लस BY इंटू AY प्लस CB इक्वल टू 1. पूरा ब्रेक कर दो, ब्रेक करने के बाद A को कॉमन ले लो, इधर से BC को कॉमन ले लो. ठीक है, तो क्या मिल रहा है, इसका इस पूरा क्वांटिटी का नाम आप P डाल दो. ठीक है, और इस पूरा क्वांटिटी का नाम आप Q डाल दो. ठीक है, तो AP प्लस BC इंटू Q इक्वल टू 1 वेयर P and Q आर सम इंटीजर्स. सो GCD ऑफ A and BC is also equal to 1. That also we proved in our earlier lecture कि अगर AX plus BY equal to 1 होता है where X and Y some integers then GCD of AB equal to 1 होता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A into P plus BC into Q equal to 1 हो रहा है where P and Q some integers. So GCD of A, BC भी 1 होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if GCD of AB equal to 1 and C divides A then GCD of BC भी 1 होगा. ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है कि अगर GCD ऑफ AB 1 होता है और C डिवाइड्स A है तो GCD ऑफ BC भी 1 होगा. ठीक है, तो GCD ऑफ AB को हम क्या लिख सकते हैं, AX प्लस BY. ठीक है, वेयर X एंड Y सम इंटीजर्स. अगेन C डिवाइड्स A, तो C डिवाइड्स अगर A है तो A विल बी ऑफ द फॉर्म C इंटू U वेयर U इज सम इंटीजर. तो आप यहाँ पे इक्वेशन 1 पे आप A के जगह पे CU बिठा दो, तो क्या मिल रहा है, CU इंटू एक्स प्लस BY इक्वल टू 1. तो आप C इंटू UX कर दो. ठीक है, C इंटू UX प्लस C इंटू UX प्लस B इंटू Y इज इक्वल टू 1. सो क्या मिल रहा है आपको, C इंटू सम इंटीजर प्लस B इंटू सम इंटीजर इक्वल टू 1. सो GCD ऑफ C एंड B इज ऑल्सो 1 एंड GCD ऑफ CB इज नथिंग बट GCD ऑफ BC इक्वल टू 1. ठीक है, C इंटू सम इंटीजर प्लस B इंटू सम इंटीजर इज इक्वल टू 1. सो GCD ऑफ C एंड B इज 1. सो GCD ऑफ C एंड B and GCD ऑफ B and C आर सेम थिंग. सो GCD ऑफ BC इज ऑल्सो इक्वल टू 1. वेरी इजी, दिस वॉज वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if GCD of AB equal to 1 then GCD of AC will be equal to GCD of CB. तो क्या बोला गया कि GCD of AB equal to 1 है, ये गिवन है. तो GCD of AC, B जो होगा और GCD of C, B जो होगा वो सेम होगा. तो हमने क्या मान लिया कि लेट GCD of CB equal to D है. तो अगर GCD of CB equal to D है तो हमको क्या प्रूव करना है कि GCD of AC, B भी D है. दैट वी नीड टू प्रूव, है कि नहीं. बोला है कि GCD ऑफ AC, B और GCD ऑफ C, B सेम होगा. तो GCD ऑफ C, B को हमने D मान लिया. तो हमको क्या दिखाना है कि GCD ऑफ AC, B भी D ही होगा. और गिवन क्या है, GCD ऑफ AB इक्वल टू 1. सो लेट अस स्टार्ट. अगर हमको दिखाना है कि D इज द GCD ऑफ AC, B, then what we need to show? We need to show that D divides AC and D divides B, and if K is any other common divisor of AC and B, then K must divide D. That is what we need to prove. This is the alternative definition of GCD, जो हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ GCD. ठीक है, तो हमको क्या दिखाना है, D इज द GCD ऑफ AC, B. तो फॉर दैट वी नीड टू शो दैट D डिवाइड्स AC एंड D डिवाइड्स B, एंड if any other common divisor, if K is any common divisor of AC and B, that is if K divides AC and K divides B, then K also must divides D. ठीक है, दैट इज D इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कॉमन डिवीजर, है कि नहीं. D इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कॉमन डिवीजर. सो देखो, D डिवाइड AC दिखाना है, D डिवाइड B दिखाना है. तो D डिवाइड B तो पहले ही है, बिकॉज इफ यू आर सेइंग दैट D इज द GCD ऑफ C, B, देन D डिवाइड्स C एंड D डिवाइड्स B. सो D डिवाइड्स B तो पहले से ही है. तो हमको दिखाना क्या है, बस हमको दिखाना है कि D डिवाइड्स AC. सो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है कि वी नीड टू शो D डिवाइड्स AC. तो D डिवाइड्स B बाई डेफिनेशन, क्योंकि जैसा कि हमने लिखा है यहाँ पे D इज द GCD ऑफ C, B. सो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रहा है कि D डिवाइड्स B. तो if K divides AC and K divides B, then K must divide D. This is the alternative definition of GCD. Now, since D divides C, so D divides C also. है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया कि D is the GCD of C, B. So D divides C, of course D divides C by definition of GCD. So अगर D divides C होता है तो D divides C भी होता है कि नहीं. तो पहला वाला तो प्रूफ कर दिया कि D divides AC. ठीक है, D divides AC is proved and D divides B is by definition. ठीक है, तो पहला रोमन नंबर 1 is showed. Now we shall move toward this. one. तो देखो अभी कि again D is the GCD of C, B implies what? D is equal to CX plus BY for some integer X and Y. ठीक है, ये हमने पहले प्रूफ कर दिया कि GCD of CB can be written as CX plus BY for some integer X and Y. तो since K divides B, यहाँ पे हमने लिया देखो K divides B. ठीक है, since K divides B, so B equal to K into U. ठीक है, फॉर सम इंटीजर U. तो यहाँ पे जो D इक्वल टू अपने CX प्लस BY लिखा है, यहाँ B के जगह पे आप KU बिठा दो, KU इंटू Y. फाइन. नाउ GCD ऑफ AB तो 1 है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन द GCD ऑफ AB इक्वल टू 1. ठीक है,
तो जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 है, सो देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स पी एंड क्यू सच दैट ए पी प्लस बी क्यू इक्वल टू 1, ठीक है, वो भी हमने पहले पढ़ा है। तो अभी आप दोनों तरफ से सी से मल्टीप्लाई करो, तो व्हाट वी आर गेटिंग दैट के ए पी सी प्लस बी क्यू सी इज इक्वल टू सी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई सी, तो व्हाट यू आर गेटिंग ए पी सी प्लस बी क्यू सी इक्वल टू सी। तो यहाँ पे जो डी इक्वल टू था ना सी एक्स प्लस के वाई इंटू यू, तो यहाँ पे आप सी के जगह में ये वैल्यू पुट कर दो, इन प्लेस ऑफ सी यू पुट दिस वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने सी के जगह में बिठा दिया ए पी सी प्लस बी क्यू सी, ठीक है, इन प्लेस ऑफ सी वी आर राइटिंग ए पी सी प्लस बी क्यू सी इंटू एक्स जगह में है, और के यू वाई भी के यू वाई के जगह में ही है सेम। तो यहाँ पे मैंने गलती से एक सी एक्स्ट्रा लिख दिया, सो दैट सी विल नॉट बी देयर, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पर्सन दैट सी इज नॉट देयर, ठीक है, दैट सी इज नॉट देयर एंड दैट सी इज नॉट देयर, दिस इज माई मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर इट, मैंने एक सी यहाँ पे ज़्यादा लिख दिया। तो देखो देखिए, तो अब इसको तोड़ो तो क्या मिलेगा, ए पी सी इंटू एक्स प्लस बी क्यू सी इंटू एक्स प्लस के यू इंटू वाई, बट ए डिवाइड सी, ठीक, ए सी, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे देखो लिखा है कि ए डिवाइड ए सी, तो अगर ए डिवाइड ए सी है तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, के इंटू सम इंटीजर, तो हमने ले लिया ए सी इक्वल टू के आर ई सम इंटीजर। तो यहाँ पे जहाँ पे ए सी है ना, कि ये देखो यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे एक सी है, ठीक है, तो इस ए सी के जगह में हमने के आर बिठा दिया, तो के आर हो गया और पी और एक्स हो गया, ठीक है, ए सी के जगह में हमने के आर बिठाया और पी एक्स रह गया, प्लस बी क्यू सी एक्स जगह में है और के यू वाई भी के यू वाई जगह में है। एक जगह पे पहले हमने लिखा है कि बी इक्वल टू के यू, देखो बी इक्वल टू के यू है, तो इन प्लेस ऑफ बी वी आर राइटिंग हेयर के यू, ठीक है, इन प्लेस ऑफ बी हमने के यू लिख दिया, तो पूरा होल टर्म में से हमारा के कॉमन चला गया, सो डी इज इक्वल टू के इंटू समथिंग, दैट इज डी इज ए मल्टीपल ऑफ के, सो के डिवाइड्स डी, एंड सो क्या हो गया, अगर के डिवाइड्स डी है तो डी इज द जीसीडी ऑफ व्हाट, ए सी कॉमा बी, वही तो हमको दिखाना था कि के डिवाइड्स डी हो गया, डी डिवाइड्स ए सी भी हो गया, और इफ के डिवाइड्स ए सी एंड के डिवाइड्स बी देन के डिवाइड्स जी दिखाना था, वो भी हमने दिखा दिया। तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया कि के इज द जीसीडी ऑफ, सॉरी डी इज द जीसीडी ऑफ ए सी कोमा बी, तो डी इज द जीसीडी ऑफ सी कोमा बी तो पहले ही लिया था, और अभी हमने प्रूफ कर दिया डी इज द जीसीडी ऑफ ए सी कोमा बी एंड हेंस जीसीडी ऑफ ए सी कोमा बी एंड इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ सी कोमा बी, दोनों का जीसीडी डी हो गया, ठीक है, सो both of them are equal, ठीक है। So now let's move toward the next question कि if GCD of AB equal to 1 होता है and C divides A plus B होता है, then GCD of AC और GCD of BC equal to 1 होगा, ठीक है, GCD of AB equal to 1 this is given in the question and C divides A plus B it is also given in the question, what we need to prove, GCD of AC और GCD of BC equal to 1 है, ठीक है। तो let D is the GCD of A, C, हमने ले लिया क्या, D is the GCD of A, C, तो हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है डी इज द जीसीडी ऑफ बी कॉमा सी ऑल्सो, देट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव कि इफ डी डिवाइड्स बी एंड डी डिवाइड्स बी भी होना पड़ेगा, डी डिवाइड सी भी होना पड़ेगा, एंड इफ एनी अदर डिविजर, इफ देयर एग्जिस्ट एनी अदर कॉमन डिविजर ऑफ बी एंड सी देन दैट डिविजर मस्ट डिवाइड डी ऑल्सो, ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन ऑफ जीसीडी, ठीक है। तो डी हमने मान लिया जीसीडी ऑफ ए कॉमा सी, तो हमको दिखाना पड़ेगा एट लास्ट डी इज द जीसीडी ऑफ बी कॉमा सी ऑल्सो, सो लेट डी इज द जीसीडी ऑफ ए कॉमा सी और d डिवाइड्स a d डिवाइड्स c बाई डेफिनेशन ऑफ जीसीडी, तो सिंस देखो d डिवाइड्स c एंड c डिवाइड्स a प्लस b, सो d ऑल्सो डिवाइड a प्लस b, a डिवाइड b, b डिवाइड c तो a डिवाइड c, ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो d डिवाइड्स a प्लस b हो गया, तो d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b, सो d डिवाइड्स ax प्लस a प्लस b इंटू y, है कि नहीं, d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स a प्लस b, सो d डिवाइड्स ax प्लस a प्लस बी इंटू वाई, तो यहाँ पे हमने लिया d डिवाइड्स a प्लस बी इंटू 1 प्लस a इंटू -1, एक्स वाई जगह में हमने 1 - 1 डाल दिया, तो प्लस से माइनस से कट गया, d डिवाइड्स b हो गया। तो हमको क्या दिखाना था, d डिवाइड्स b एंड d डिवाइड्स c, तो देखो d डिवाइड्स c तो पहले से ही है, जब तुमने यहाँ पे ले लिया d इज द जीसीडी ऑफ a एंड c, सो बाय डेफिनेशन d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स c, तो हमने अभी क्या देखा है d डिवाइड्स b ऑल्सो, सो d इज ए कॉमन डिविजर ऑफ b एंड c। हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं d को जीसीडी ऑफ bc दिखाने के, डी को जीसीडी ऑफ बी कॉमा सी दिखाने के लिए हम धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो पहले हमने प्रूव कर दिया कि डी इज द जीसीडी ऑफ बी कॉमा सी, डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ो, जीसीडी का डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ो, यू कैन प्रूव ऑल द रिजल्ट वेरी इजीली। तो फर्स्ट हमने दिखा दिया कि डी इज ए कॉमन डिविजर ऑफ बी एंड सी, एंड नाउ वी विल प्रूव दैट कि अगर कोई दूसरा पॉजिटिव कॉमन डिविजर होता है बी और सी का, तो दैट पॉजिटिव डिविजर मस्ट ऑल्सो डिवाइड डी, सो वी आर गोइंग टू प्रूव दिस वन नाउ। तो अभी हमने प्रूव किया डी इज ए कॉमन डिविजर ऑफ बी एंड सी, let k be any other common divisor of b and c, ठीक है, that is k divides b and k divides c, so we need to show that what k divides d, this is the alternative definition of GCD। So now
जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो देयर इज इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई 1 होगा, वी नो इट वेरी वेल. नाउ डी इज द जीसीडी ऑफ ए कोमा सी, वो हमने पहले लिया है, डी इज द जीसीडी ऑफ ए कोमा सी. सो डी इक्वल टू ए यू प्लस सी बी, ठीक है, फॉर सम इंटीजर यू एंड बी. तो ए का वैल्यू जो है सी पी है, सॉरी अभी देखो यहाँ पे सी डिवाइड्स ए प्लस बी है कि नहीं. तो अगर सी डिवाइड्स ए प्लस बी है तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, सी इंटू पी फॉर सम इंटीजर पी, ठीक है. अगर सी डिवाइड्स ए प्लस बी है तो ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट, सी इंटू समथिंग, द समथिंग इज सम इंटीजर. तो हमने सी पी लिया हुआ है, पी इज एन इंटीजर. फ्रॉम देयर व्हाट वी आर गेटिंग, ए इक्वल टू सी पी इंटू सी पी माइनस बी, ए इक्वल टू सी पी माइनस बी. तो इन प्लेस ऑफ ए, यहाँ पे जो ए था यहाँ पे हमने बिठाया सी पी माइनस बी, बिठाने के बाद हमको ये एक्सप्रेशन मिला, ठीक है. अभी k divides b, so b equal to kr for some integer r, and k divides c, so c equal to ks for some integer s, ठीक है. यहाँ पे इधर में लिखा है हमने k divides b and k divides c. तो in place of b we are writing kr and in place of c we are writing ks. तो क्या मिला हमको, d is equal to k into something, so d is a multiple of k and hence k divides d. So by the definition of GCD, GCD of AC एंड जीसीडी ऑफ बीसी दोनों ही डी हो गया, ठीक है. जीसीडी ऑफ एसी भी डी है, जीसीडी ऑफ बीसी भी डी हो गया, ठीक है. तो हमको क्या मिला अभी, डी डिवाइड्स बी, डी डिवाइड्स सी, डी डिवाइड्स ए ऑल्सो. क्योंकि जीसीडी ऑफ एसी इक्वल टू अगर डी है दैट मीन डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स सी. जीसीडी ऑफ बीसी अगर डी है तो डी डिवाइड्स बी, डी डिवाइड्स सी. तो नाउ डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, सो डी डिवाइड्स व्हाट, डी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई. हाँ, हमको पता है ये पहले से ही. तो व्हाट इज ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1, ठीक है. तो यहाँ पे बिठा दिया हमने 1. सो डी इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1, लेकिन डी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, सो डी इज ऑलवेज 1. तो हैंस जीसीडी ऑफ एसी और जीसीडी ऑफ बीसी इक्वल टू डी था, तो डी क्या है, वो डी 1 है. सो यही था हमारा रिजल्ट कि जीसीडी ऑफ एसी और जीसीडी ऑफ बीसी इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है. ऑल्टरनेटिव प्रूफ देखो, ये आसान है थोड़ा. ऑल्टरनेटिव प्रूफ कि जीसीडी ऑफ ए बी अगर 1 है, देयर इज इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 1, वी नो इट. ऑल्सो सी डिवाइड ए प्लस बी, ये भी गिवन है, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी आर होगा फॉर सम इंटीजर आर, ठीक है. तो ए इक्वल टू क्या होगा, सी आर माइनस बी. तो ये ए का वैल्यू जो है आप इक्वेशन 1 में डाल दो. तो डालने के बाद हमको क्या मिलेगा, हमको मिला कि सी इंटू आर एक्स प्लस बी इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1. तो सी इंटू सम इंटीजर प्लस बी इंटू सम इंटीजर इक्वल टू 1, दैट वन इम्प्लाइज व्हाट, जीसीडी ऑफ सी बी इक्वल टू 1, दैट मीन जीसीडी ऑफ बी सी इक्वल टू 1, ठीक है. जीसीडी ऑफ बी कोमा सी इक्वल टू 1 हो गया. अभी फिर से आप इक्वेशन 2 से क्या मिल रहा है, बी का वैल्यू क्या होगा, सी आर माइनस है. तो आप इक्वेशन 1 में जाके बी का वैल्यू डाल दो. डालने के बाद आपको एट लास्ट ये इक्वेशन मिलेगा, ए इंटू सम इंटीजर प्लस सी इंटू सम इंटीजर इक्वल टू 1. सो जीसीडी ऑफ एसी भी 1 हो गया, ठीक है. तो यहाँ से आपको आसानी से मिल गया कि जीसीडी ऑफ बीसी भी 1 है और जीसीडी ऑफ एसी भी 1 है, एंड हैंस जीसीडी ऑफ एसी कोमा इक्वल टू जीसीडी ऑफ बीसी इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है. तो दिस वन इज इजी प्रूफ, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप. नाउ कि अभी देखो कि इफ जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 एंड डी डिवाइड्स एसी, देन डी डिवाइड्स बीसी ऑल्सो. ओ सॉरी, ये सब गिवन है कि इफ जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 है, जीसीडी ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू 1 है, डी डिवाइड्स ए सी भी है, डी डिवाइड्स बी सी भी है, तो डी डिवाइड्स सी, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है. समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 ये गिवन है, डी डिवाइड्स ए सी ये भी गिवन है, डी डिवाइड्स बी सी ये भी गिवन है, तो डी डिवाइड्स सी भी होना पड़ेगा प्रोवाइडेड जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 है. दैट इज इफ डी डिवाइड्स ए सी एंड डी डिवाइड्स बी सी and GCD of AB equal to 1, then D divides C also. So let us start the proof. GCD of AB equal to 1, that is AX plus BY equal to 1, so for some integer X and Y, ठीक है. तो D divides AC and D divides BC means what, D divides ACX plus BCY, C common ले लो, D divides C into AC AX plus BY, ठीक है. What is the value of AX plus BY, it is 1, so D divides C into 1, so D divides C, very easy proof, ठीक है. Now last क्वेश्चन फॉर टुडेज डिस्कशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 है तो जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी 1 होगा. दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव कि अगर जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 होता है तो जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी 1 होगा. तो फॉर दैट वी नीड दैट थ्योरम जो हमने पहले किया है. ये देखो पहले हमने किया है यहाँ पे कि अगर जीसीडी कहा गया अगर जीसीडी ऑफ ए बी 1 होता है देन जीसीडी ऑफ ए सी कोमा बी और जीसीडी ऑफ सी कोमा बी सेम होगा. वी नीड दिस थ्योरम फॉर दिस लास्ट प्रूफ. अगर जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 है तो जीसीडी ऑफ ए सी कोमा बी और जीसीडी ऑफ सी कोमा बी भी सेम होता है, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस थ्योरम फॉर आवर लास्ट प्रूफ.
कि अगर जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 है तो जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर भी 1 होगा। तो हमने लिखा है वी नो जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 अगर होता है, इफ जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 देन जीसीडी ऑफ ए सी और जीसीडी ऑफ सी भी सेम होगा। ये हमको पता है कि अगर जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 होता है तो जीसीडी ऑफ ए सी कोमा बी और जीसीडी ऑफ सी कोमा बी सेम होता है। तो इक्वेशन 1 में जो इक्वेशन 1 जो हमने दिया है वहाँ पे आप सी के जगह में ए बिठा दो। सी इज इंटीजर, ए इज ऑल्सो इंटीजर, दिस इज ट्रू फॉर ऑल सी। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है कि अगर जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 है तो जीसीडी ऑफ ए सी कोमा बी और जीसीडी ऑफ सी कोमा बी सेम होगा। ये सी क्या है? सी इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो इस सी के जगह में आप ए बिठा दो। तो यहाँ पे हम ए लिख रहे हैं, तो क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन 1 में बिठा दो सी के जगह में, तो जीसीडी ऑफ ए इंटू ए कोमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कोमा बी। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको? जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी, और जीसीडी ऑफ ए बी कितना है? 1 है, तो जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी भी 1 हो गया। समझ में आया बात? इन प्लेस ऑफ सी वी आर राइटिंग व्हाट? वी आर राइटिंग ए। तो जीसीडी ऑफ ए इंटू ए कोमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कोमा बी, सो जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी हो गया। जीसीडी ऑफ ए बी तो 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी भी 1 हो गया। तो अभी आप सेम चीज़ प्रूव कर सकते हो कि जीसीडी ऑफ बी स्क्वायर ए जो है वो भी 1 होगा। तो जस्ट इक्वेशन 1 में आप ए को बी से रिप्लेस करो और बी को ए से रिप्लेस करो। इक्वेशन 1 में आप ए को बी से रिप्लेस करो और बी को ए से रिप्लेस करो। दैट इज, अगर हम यहाँ पे ऐसा लिखे कि मानो हम लिखते हैं कि जीसीडी ऑफ बी ए इक्वल टू 1, दैट इज इफ वी राइट दैट जीसीडी ऑफ बी कोमा ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, जीसीडी ऑफ ए बी सेम एज जीसीडी ऑफ बी ए, ठीक है नहीं? जीसीडी ऑफ ए बी और जीसीडी ऑफ बी ए सेम ही है। इफ यू से जीसीडी ऑफ 2 3 और जीसीडी ऑफ 3 2 दे आर सेम थिंग। जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1, इन इक्वेशन 1 वी आर रिप्लेसिंग ए बाई बी। ठीक है, बी के जगह में ए और ए के जगह में बी लिखते हैं। तो क्या होगा कि अगर जीसीडी ऑफ बी ए इक्वल टू 1 होता है देन क्या होगा? देन व्हाट वी गेट? देन जीसीडी ऑफ, जहाँ बस आप ए को बी से रिप्लेस करो, कुछ नहीं करना है, जीसीडी ऑफ बी सी कोमा ए इक्वल टू जीसीडी ऑफ सी कोमा बी, सी कोमा ए, सॉरी, इन प्लेस ऑफ ए वी आर राइटिंग बी, इन प्लेस ऑफ बी वी आर राइटिंग ए। ठीक है, इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ पे ए है आप बी से रिप्लेस करो और जहाँ जहाँ पे बी है वहाँ से ए पे रिप्लेस करो। दिस इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, दिस इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ए के जगह में हमने बी लिख दिया और बी के जगह में ए लिख दिया। तो जीसीडी ऑफ बी ए इक्वल टू 1 है, जीसीडी ऑफ ए बी एंड जीसीडी ऑफ बी आर सेम थिंग। जीसीडी ऑफ बी ए इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे ए के जगह में बी लिखो। जीसीडी ऑफ बी सी इक्वल टू जीसीडी ऑफ, ये जो जब हम ए को बी से रिप्लेस करेंगे, बी को ए से रिप्लेस करेंगे, तो दैट थ्योरम विल बिकम जीसीडी ऑफ बी सी कोमा ए इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ सी कोमा ए। समझ में आया? जब जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 था तो क्या था? जीसीडी ऑफ ए सी कोमा बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ सी कोमा बी था। अब हमने बी को ए से रिप्लेस कर दिया, ए को बी से रिप्लेस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? जीसीडी ऑफ बी ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जीसीडी ऑफ बी ए अगर 1 होता है देन हम क्या प्रूफ करेंगे? जीसीडी ऑफ बी सी कोमा ए इक्वल टू जीसीडी ऑफ सी कोमा ए। समझ में आया कि नहीं? वी आर रिप्लेसिंग ए बाई बी एंड बी बाई ए। तो जो क्वेश्चन था हमने पहले प्रूफ किया था वो ऐसा था कि अगर जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू 1 होता है तब ये ट्रू होता है। तो अभी हमने क्या लिखा कि अगर जीसीडी ऑफ बी ए 1 होता है, बी ए और ए बी सेम थिंग है, जीसीडी ऑफ ए बी एंड जीसीडी ऑफ बी आर सेम थिंग, तो अगर जीसीडी ऑफ बी ए इक्वल टू 1 होता है तो वो क्या हो जाएगा? देन व्हाट वी नीड टू प्रूव। तो पहले क्वेश्चन का सोचो, तो तब हमको क्या बोलता प्रूफ करने के लिए? तो बोलता जीसीडी ऑफ बी सी कोमा ए इक्वल टू जीसीडी ऑफ सी कोमा ए बोलता, पहले जो हमने प्रूफ किया है। तो और इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने सी इक्वल टू ए लिया था ना, तो यहाँ पे हमने ले लेंगे कि लेट सी इक्वल टू ए ना लेके हम लेंगे लेट सी इक्वल टू बी लेंगे। तो जब हम लेट सी इक्वल टू बी लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जीसीडी ऑफ, यहाँ पे देखो जीसीडी ऑफ बी सी कोमा ए के जगह में हम लिखेंगे जीसीडी ऑफ बी इंटू बी कोमा जीसीडी ऑफ बी इंटू बी कोमा ए। ठीक है, इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी कोमा ए। समझ में आया? इन प्लेस ऑफ सी वी आर राइटिंग बी, सो जीसीडी ऑफ बी इंटू बी कोमा ए इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी कोमा ए। तो क्या हो गया? जीसीडी ऑफ बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी ए इक्वल टू 1। तो वही हमने लिखा यहाँ पे, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा यही सब मैंने यहाँ पे लिखा कि जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी ए होता है। ठीक है, तो
ये हमने यहाँ पे लिखा था जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी ए, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे बोला वही पे यहाँ पे मैंने लिखा कि जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी ए, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन हियर, जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी ए। और जीसीडी ऑफ बी स्क्वायर ए इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी ए, वही हमको लास्ट लाइन में मिला कि जीसीडी ऑफ बी स्क्वायर ए इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी ए एंड जीसीडी ऑफ ए बी क्या है 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एट लास्ट हमको क्या मिला कि जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी भी 1 है, जीसीडी ऑफ बी स्क्वायर ए भी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा आपको को जीसीडी ऑफ ए कोमा बी स्क्वायर भी 1 है, जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर कोमा बी भी 1 है। पहले मिला जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी इक्वल टू 1, ए को बी से रिप्लेस करने के बाद हमको क्या मिला, जीसीडी ऑफ बी स्क्वायर ए भी 1 ही मिला। तो जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी इक्वल टू 1 या पहले से मिल गया था, और जीसीडी ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ये हमको नेक्स्ट लाइन से मिला, ठीक है। तो बी स्क्वायर कोमा ए लिखो, ए कोमा बी स्क्वायर लिखो, दिस आर सेम थिंग। नाउ अप्लाइंग 1 अगेन, अब फिर से आप 1 को अप्लाई करो कि अगर जीसीडी ऑफ ए कोमा बी स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, आई एम राइटिंग इट अगेन कि इफ, ठीक है, इफ जीसीडी ऑफ ए कोमा बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए कोमा बी स्क्वायर, ठीक है, इफ जीसीडी ऑफ ए कोमा बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इफ जीसीडी ऑफ ए कोमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन क्या होगा, देन जीसीडी ऑफ ए सी कोमा बी स्क्वायर, ठीक है, ये जो पहला जो हमने लिखा था यहाँ पे देखो, पहला वाला कि अगर जीसीडी ऑफ ए बी 1 होता है तो जीसीडी ऑफ ए सी कोमा बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ सी कोमा बी होता है। तो ये हम लिख रहे हैं कि अगर जीसीडी ऑफ ए कोमा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो जीसीडी ऑफ ए सी कोमा बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा जीसीडी ऑफ, इट विल बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ सी कोमा बी स्क्वायर, है कि नहीं, सी कोमा बी स्क्वायर। अंडरस्टूड व्हाट आई सेड कि अगर जीसीडी ऑफ ए बी पहले जो लिखा था हमने कि अगर जीसीडी ऑफ ए बी अगर 1 है तो जीसीडी ऑफ ए सी कोमा बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ सी कोमा बी होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि अगर जीसीडी ऑफ ए कोमा बी स्क्वायर 1 है तो जीसीडी ऑफ ए सी कोमा बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ सी कोमा बी स्क्वायर, ठीक है। बी के जगह में बी स्क्वायर आ गया, बस यही बात है, इन प्लेस ऑफ बी वी आर राइटिंग बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप सी के जगह में ए बिठाओ, लेट सी के जगह में आप ए बिठा दो, लेट सी इक्वल टू ए बिठाओ, तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा आपको जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर, जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर, जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, इज इक्वल टू मिलेगा आपको जीसीडी ऑफ ए कोमा बी स्क्वायर, ए कोमा बी स्क्वायर, ठीक है। एंड व्हाट इज जीसीडी ऑफ ए कोमा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है कि नहीं, एंड इट इज इक्वल टू 1। जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा, एंड अप्लाइंग 1 अगेन वी गेट, अप्लाइंग 1 अगेन व्हाट वी गेट, अप्लाइंग 1 वी गेट जीसीडी ऑफ ए कोमा ए इंटू ए, यहाँ पे जो मैंने लिखा है स्क्वायर दैट इज ए इंटू ए, जीसीडी ऑफ ए इंटू ए कोमा बी स्क्वायर इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कोमा बी स्क्वायर, एंड जीसीडी ऑफ ए कोमा बी स्क्वायर क्या है, जीसीडी ऑफ ए कोमा बी स्क्वायर 1 है तो इक्वल टू 1 है, तो जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी 1 हो गया। ये हमने फिर से 1 यूज़ किया, 1 को फिर से यूज़ किया। अगर जीसीडी ऑफ ए बी स्क्वायर 1 है तो जीसीडी ऑफ ए सी कोमा बी स्क्वायर इक्वल टू जीसीडी ऑफ सी कोमा बी स्क्वायर होगा, तो सी के जगह में ए ले लो, तो जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कोमा बी स्क्वायर, एंड जीसीडी ऑफ ए कोमा बी स्क्वायर तो 1 है, तो जीसीडी ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी 1 हो गया, ठीक है। अंडरस्टूड। तो मैंने जो साइड नोट लिखा वो अच्छे से लिख के रखो, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे पूछो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, सो राइट ऑल दिस इन योर नोटबुक, एंड जो भी होमवर्क दिया डू इट, ठीक है। एंड क्वारंटाइन का जो डेज है उसको अच्छे से यूज़ करो, यूज इट वाइजली। स्कूल का भी असाइनमेंट है, मैंने भी असाइनमेंट दे दिया, सो दोनों को ही अच्छे से करो, दोनों को अच्छे से मन रख के करो, ठीक है। थैंक यू।